Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Topic of this video is proportion. Proportion. The equality between two ratio is called proportion. In other words, the four quantities A, B, C and D are said to be in proportion if A ratio B is equal to C ratio D. मीन यहाँ पर टू रेशोज़ हैं, एक रेशो है ए रेशो बी और एक रेशो है सी रेशो डी। इन दो रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी का सिंबल है, तो इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। फॉर प्रोपोर्शन वी यूज़ द सिंबल डबल कॉलन। सिंगल कॉलन हम यूज़ करते हैं रेशो के लिए और डबल कॉलन सिंबल हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोपोर्शन इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। In a proportion, the first and fourth elements are called extremes of a proportion. First or fourth, ठीक है? And the second and third elements are called means of a proportion. For example, A ratio B proportional to C ratio D. Here A and D are extremes of proportion and BC, second or third element है BC. These are called means of a proportion. If second and third elements of a proportion have the same value, अगर second और third element की value same होगी, such as A ratio B proportional to B ratio D, यानी C की place पर भी हमने B put किया है। ठीक है, तो centered की जो mean proportion की values हैं वो दोनों same हैं, then B is called mean proportional. ठीक है, then B is called mean proportional. The fourth element of a proportion is known as the fourth proportional. For example, in proportion A ratio B proportional to C ratio D, here D is called the fourth proportional of A, B and C. In proportion A ratio B proportion to C ratio D, we express it as a fraction. A ratio B को हम express कर सकते हैं A by B. Proportional के symbol की place पर हम equality लिखते हैं. C ratio D means C divided by D. अब by cross multiplication, A into D is equal to B into C. Look at there, A and D are extreme values and B and C are means values. So the product of extremes is equal to product of means. This is a very important result जो कि use होगा in proportion to find a missing value. 4 quantities में से अगर कोई एक missing value है तो वो find करने के लिए हम ये relation जो है वो use करते हैं. There are two types of proportion. One is direct proportion, another is inverse proportion. A relation in which one quantity increase in the same proportion by increasing the other quantity is called the direct proportion, or decrease in one quantity in the same proportion by decreasing the other quantity, then it is also called direct proportion. यानी किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो और एक के डिक्रीज़ होने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो, तो देन सच अ रिलेशन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. नाउ लुक एट द इनवर्स प्रोपोर्शन. इफ़ इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी causes the decrease in other quantity, or decrease in one quantity causes the increase of other quantity, then such a relation is called inverse proportion. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस. ठीक है, इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप थिंग्स बाय करेंगे उतने ज़्यादा आपको उनकी प्राइस देनी पड़ेगी. ठीक है, आप 5 पेंसिल्स लेंगे तो आपको 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे. आप 12 पेंसिल्स लेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी. ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. क्लियर हो गया?
इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, 10 वर्कर्स लगे हुए हैं उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, उनको अगर 30 डेज़ का टाइम लगता है, तो अगर हम वर्कर्स को बढ़ा दें, वर्कर्स की क्वांटिटी को 10 की प्लेस पर 20 कर दें, तो वही टाइम उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में आप कम लगेगा। सो द रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द डेज टू कंप्लीट अ वर्क आर इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर? नेक्स्ट इज यूनिटरी मेथड, अ मेथड which is used to calculate the value of number of things by finding the value of one unit thing is called the unitary method. मीन्स कि इसमें हम ये करते हैं कि अगर हमें पता है कि द प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स इज़ 144 रुपीज़, ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, एक तो मेथड है कि इसको हम प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करें, सेकंड इज़ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल्स। Price of 12 pencils is 144, so the price of 1 pencils is 144 divided by 12. तो हम एक पेंसिल की प्राइस फाइंड कर लेंगे। अब हमें जितनी भी पेंसिल्स की प्राइस कहा है हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें 5 पेंसिल्स की प्राइस बताना है, तो 5 आंसर 5। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन फ्रॉम द डेली लाइफ। डेली लाइफ से आपने 3 एग्जाम्पल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बतानी है, तलाश करनी है, और 3 आपने इन्वर्स प्रोपोर्शन की। क्लियर? थैंक यू।